آج 8 سفر دوسری جمعرات، ایک ایسا دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ آج جو شخص ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو تقدیر کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ دن جو پریشانی میں گزر رہے ہیں خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ وہ دروازے جو بندتوں سے بند ہیں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آنے والا پورا سال رحمت، برکت اور آسانیوں سے بھر جاتا ہے۔ بس دیر نہ کریں، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی اسی وقت نیت کریں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 سفر دوسری جمعرات، ایک نہایت بابرکت اور قیمتی دن، ایسا موقع جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ سن لیں، جو شخص آج ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ مکمل یقین اور درست طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جسے اللہ اپنا بنا لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سفر وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جمعرات کا دن خود ایک بابرکت دن ہے۔ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آج اگر آپ نے اس خاص دن میں چند لمحے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورا سال رحمت، برکت، کامیابی اور خوشحالی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ عمل معمولی نہیں، یہ وہ راز ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی ختم ہو، بیماریاں دور ہوں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور زندگی سکون سے بھر جائے تو آج اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کو مصلے پر بٹھا کر کہوں کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج دعائیں عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر آج کا دن غفلت میں گزر گیا تو شاید پورا سال انتظار کرنا پڑے، لیکن اگر آج آپ نے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ آپ کے نصیب کو چمکا دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا اور ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یاد رکھیں، بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے موقع پر بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بس چند منٹ نکالیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ نے آج قبولیت کا دروازہ کھولا ہے، آپ کی کوئی دعا خالی نہیں جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایک نکتہ سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، جب آپ کے ملک میں 8 سفر دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو اس موقع کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ یہ ایک ایسا قیمتی دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آپ یہ وظیفہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، بلکہ رات 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی پابندی۔ آپ گھر پر ہوں، دکان پر ہوں یا کہیں سفر میں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی برکت ایسی ہے کہ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آج اپنے رب سے کھل کر مانگیں، یہ نہ سوچیں کہ کم مانگوں۔ آج اگر آپ اس کے خزانوں سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو وہ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرمانے والا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور دل کو حاضر کریں۔ آئیے اب اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے روحانی وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 سفر دوسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وقت ملے ایک مٹھی چینی لے کر باوضو مصلے پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت بے شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरन अपने दिल में अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ले, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग है। किसी को रिज़्क़ की तंगी ने घेर रखा है, कोई कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई किराए के मकान में दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपकी जो भी हाजत है, जो भी दर्द है, उसे दिल में रख कर नीयत करें। फिर फ़ौरन एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस बाबरकत वजीफ़े का बाकायदा आगाज़ करना है। याद रखें, तावुज़ और तस्मिया वो ताकत है जो हर शैतानी असर को ख़त्म कर देती है, और जिस काम की इब्तिदा इन अल्फाज से हो जाए उसमें बरकत, खैर और हिफाजत शामिल हो जाती है। जब आप नीयत कर ले और तावुज़ और तस्मिया पढ़ लें तो ख़ुद को दुनिया से अलग कर ले। यूँ महसूस करें जैसे आप रोज़ा रसूल की जालियों के सामने बैठे हैं और पूरी तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। इस दौरान न किसी से बात करनी है और न किसी की बात सुननी है। अब सबसे पहला वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह करीम के एक जलाली नाम का वजीफ़ा है। ऐसा नाम कि जिसे सच्चे दिल से पढ़ लिया जाए तो बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप रिज़्क़ की तंगी, गुरबत, फाकों, नज़र बद, हसद या बंदिशों से निजात चाहते हैं तो आज इस नाम को ज़रूर पढ़ें, और वो नाम या कहारू है। ये अल्लाह ताला का वो अजीम सिफाती नाम है जो हर रुकावट को तोड़ देता है, हर बंदिश को ख़त्म कर देता है और हर दुश्मन के असर को मिटा देता है। आज के दौर में लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, नौकरियां छिन रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और इसके पीछे अक्सर नज़र बद, हसद और छुपी हुई रुकावटें होती हैं। इसलिए ख़ुद को और अपने घर को बचाना ज़रूरी है। इसलिए आज आपने पहले नंबर पर या कहारू पढ़ना है। कैसे और कितनी बार तवज्जो कीजिएगा। या कहारू 1 बार, या कहारू 2 बार, या कहारू 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन शर्त यह है कि दिल हाजिर हो और यकीन कामिल हो। जब बंदा इखलास के साथ या कहारू पढ़ता है तो अल्लाह के हुक्म से गैबी मदद उसके करीब आती है, मुश्किलात आसान होने लगती हैं और बंदिशें टूटने लगती हैं। जब आप पहले नंबर पर 11 बार या कहारू पढ़ ले तो उसी वक़्त एक मुट्ठी चीनी पर दम कर दें। जब आप 11 बार या कहारू पढ़कर चीनी पर दम कर लें तो इसके फ़ौरन बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिससे आपने अल्लाह ताला को उसकी सिफ़त रबूबियत के साथ पुकारना है, और वो मुबारक कलिमात या रब्बाना हैं, यानी ए हमारे रब। जब बंदा अपने रब को इस मोहब्बत और आजिज़ी से पुकारता है तो रब करीम उसकी पुकार को रद्द नहीं करता, बल्कि उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है, उसके रास्तों से रुकावटें हटा देता है और उसके नसीब को चमका देता है। अब आपने मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ या रब्बाना पढ़ना है। कैसे और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रब्बाना 1 बार, या रब्बाना 2 बार, या रब्बाना 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन दिल में ये यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मेरी सुन रहा है। ये नाम रब की रहमत को अपनी तरफ खींचने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या रब्बाना पढ़ लें तो दोबारा उस एक मुट्ठी चीनी पर दम कर दें। अब तक आप 2 अहम वज़ाइफ मुकम्मल कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है ये वजीफ़ा कुरान मजीद की एक नहायत मुख्तसर मगर बेहद अजीम सूरत का है। वो सूरत जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाई, जिसे हम सूरह कौसर के नाम से जानते हैं। ये वो मुबारक सूरत है जिसे दौलत, बरकत और फरावानी की सूरत भी कहा जाता है। अक्सर माएँ और बहनें शिकायत करती हैं कि घर में रिज़्क़ की तंगी है, मर्दों को रोज़गार नहीं मिल रहा, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। तो आज इस सूरत का ये अमल ज़रूर करके देखें। ये वो सूरत है जो कसरतों, बरकतों और कामयाबियों का दरवाज़ा खोल देती है। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत जब घर में बुलंद आवाज़ से की जाए तो घर से परेशानियां, मुसीबतें और तंगियां ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये कामयाबी का राज है, ये दौलत का ख़जाना है। जो इसे यकीन के साथ पढ़ता है वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आइए पहले इसकी तिलावत सुन लें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अब आपने इसी सूरत को मुकम्मल यकीन, आजिज़ी और टूटे हुए दिल के साथ पढ़ना है। चाहे तो उंगलियों पर गिन लें या तस्बीह के दानों पर आपने इसे 33 मरतबा पढ़ना है। और जब भी पढ़े ऐसे पढ़े जैसे आप अपने रब के सामने खड़े हैं। आंखों में आंसू हो, दिल में दर्द हो, ज़ुबान पर शुक्र हो और हाथ दुआ के लिए उठे हों। पढ़ते जाएं और मांगते जाएं। यकीन करें ये वो सूरत है कि अगर 33 बार इखलास के साथ पढ़ ली जाए तो अल्लाह ताला आपकी नस्लों तक को आबाद फरमा देता है। रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाती है, गुनाहों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और हर तरह की बंदिशें टूटना शुरू हो जाती हैं। जब आप तीसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो आखिर में उस एक मुट्ठी चीनी पर दम कर दें। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब चौथे और आखिरी नंबर पर आपने एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वो वजीफ़ा है जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल नहीं होता। अब आपने अल्लाह ताला के दो इंतहाई अजीम और ख़ास नाम पढ़ने हैं जो रिज़्क़, फौरी मदद और मुश्किलात के हल के लिए बेहद मुजर्रब माने जाते हैं। और वो मुबारक नाम या हय्यु या क़य्यूम है। ये वो इस्म आज़म है जिसे फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं, सहाबाए किराम का मामूल भी रहा है। जब बंदा इन नामों के साथ अपने रब को पुकारता है तो नामुमकिन भी मुमकिन होने लगता है। पुरानी से पुरानी बीमारियां, बरसों की तंगदस्ती, घर की बेसकूनी और बेबरकती सब ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर नज़र-ए-बद, हसद, जादू या किसी भी किस्म की रुकावट है तो वो भी जड़ से ख़त्म होने लगती है। अब आपने पूरे यकीन और दिल की गहराई से या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना है। कैसे और कितनी बार तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम 1 बार, या हय्यु या क़य्यूम 2 बार, या हय्यु या क़य्यूम 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 11 बार पढ़ना है, लेकिन दिल में यकीन होना चाहिए कि मेरा रब सुन रहा है। जब आप 11 बार ये सब मुबारक पढ़ लें तो उसे एक मुट्ठी चीनी पर दम कर दें। अब आपका मुकम्मल अमल यूँ है कि पहले 11 बार या कहारू, फिर 11 बार या रब्बाना, इसके बाद 33 मरतबा सूरह कौसर और आखिर में 11 बार या हय्यु या क़य्यूम। जब ये चारों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से मुकम्मल हो जाएं तो आखिर में दोबारा 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। अब इस चीनी के साथ क्या करना है, ये सबसे ख़ास बात है। आप इस चीनी को किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहां अल्लाह की मखलूक इसे खा सके। किसी दरख्त के नीचे, किसी खुली जगह या ऐसी जगह जहां परिंदे, चूंटियां या दीगर हशरात इसे खा लें। जैसे ही अल्लाह की मखलूक इसमें से खाएगी वैसे ही आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। तंगदस्तियाँ ख़त्म होंगी, रिज़्क में कुशादगी आएगी और ज़िंदगी में खुशहाली के दरवाज़े खुल जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि रिज़्क कहाँ कहाँ से आ रहा है। याद रखें, अल्लाह बहुत अता करने वाला है और इस अमल की बरकत से वो आपको भी नवाजेगा। ये वजीफ़ा न सिर्फ आप बल्कि आपकी नस्लों के लिए भी बाइसे खैर बन सकता है। इसे कभी तर्क न करें। इस पर अमल करने वाले दीनों दुनिया दोनों में कामयाबी पाते हैं। आज के दिन इस अमल को ज़रूर करें, क्योंकि जब बंदा इस बाबरकत महीने में अल्लाह का जिक्र करता है तो रब की रहमत जोश में आती है और मांगने वाला खाली नहीं लौटता। मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाता है। ये एक आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह इसके बाद अल्लाह की रहमतें आप पर बरसेंगी। और आखिर में गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाएं, क्योंकि इसी में असल बरकत और सुकून है। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द दूर फरमाए, हमें आसानियाँ अता फरमाए और 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक दे। आमीन। और जाते जाते एक गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत के लिए अल्लाह के किसी एक नाम को कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।